Pause button. Tap to activate. Assalamu alaikum. Good morning, student. I hope that you all will be fine and doing well. Today we are going to start our new lecture, which is from the subject of management of PCC, physically challenged children, and course code is SPED 3132. So the topic that we are going to work on today is 3.6 management and educational adaptations. So guys, this is very important topic, and because uh, as for my understanding till now, what we have discussed till now is about all health impairments in chapter number 3, because in the start we have got the introduction of health impairments, and after that we have discussed asthma. Then we considered cystic fibrosis, CF. After that we discussed in our last lecture blood diseases. Then we discussed the inborn error of metabolism, and after that we discussed juvenile arthritis. Now today we are going to discuss this new topic, as I have told earlier, 3.6 management and educational adaptations. So about myself, I'm Kashif Iqbal, and I've been working as a lecturer special education. So before going to start the lecture today, I would like to introduce the agenda. The agenda that I have set for you people is much of my concern. So after the successful completion of this topic, you will be able to, number 1, define the physical disabilities and other health impairments. इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप लोग यकीनन इस काबिल हो जाएंगे कि फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ को भी आप एलैबोरेट कर सकें और अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट्स को भी. ये जो एलैबोरेशन होती है सम टाइम पर्सनल होती है और सम टाइम एक्सटर्नल होती है. पर्सनल उस वक्त होती है जिसमें आपके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन हो, और ये आपकी फाउंडेशन होती है. और जब ये आपकी फाउंडेशन मजबूत हो जाती है, आप किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन करने के काबिल हो जाते हैं, तो फिर आप ज़िंदगी की किसी भी स्टेज पे, किसी भी फोरम पे जाके जब आप उसको डिफ़ाइन करते हैं तो लोग आपकी बात को एक्सेप्ट करते हैं, और ख़ासकर उस वक्त जब ये मैटर जॉब रिलेटेड हो. सो आई एम श्योर दैट आफ्टर completion of this topic you will be able to define the physical disabilities and other health impairments. Number 2, second agenda, describe the characteristics of these disabilities. Means चाहे फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ हैं या अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट्स हैं, आप इनके करेक्टरिस्टिक्स इजीली डिस्क्राइब कर सकेंगे. एजेंडा नंबर 3, elaborate special consideration exist for these students with regard to instructional and related services. ये इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है जो कि हमारे टॉपिक को टच करता है. नंबर 4, explain teaching to students with other health impairment. Students with other health impairment के स्टूडेंट की टीचिंग कैसे करनी है, this is also the point of discussion today. Point number 5, comprehend those guidelines which are helpful in teaching to students with physical disabilities. यकीनन आप उन गाइडलाइंस को कॉम्प्रिहेंड कर सकेंगे, अंडरस्टैंड और एलैबोरेट कर सकेंगे
कि जो स्टूडेंट्स विद फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ हैं उनको टीच करने की क्या गाइडलाइंस हैं, क्या तरीके हैं. Agenda number 6 that I have set for you people today, and it is present at the last, it is at the end. Explore some major issues related to teaching and providing services to students with physical disabilities or other health impairments. So you will be able to explore, आप यकीनन इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकेंगे उन मेजर इश्यूज़ को जो कि टीचिंग से रिलेटेड हैं या उन सर्विसेज से रिलेटेड हैं जो कि स्टूडेंट्स विद फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ या अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं, मच नीडेड होते हैं. So guys, this is the agenda for today. To enhance the quality of you people, it is important that in last class what we have discussed, it is about blood diseases, inborn error of metabolism, and the last one is juvenile arthritis. As I had told you in last discussion, in last topic, that these three topics are interrelated with each other. So for that concern, I have discussed all these three topics in one discussion, in one lecture. So now we are going to discuss the chapter, the topic 3.6, and as I have told already, as I have defined the name of this topic, which is about management and educational adaptations. So I'm talking about the management and educational adaptation. So we are concerned with the management and educational adaptations of only other health impairments. This is a key concept of this discussion today. What could be the management? What could be the educational adaptation for the other health impairments? So, in the start, what are the definitions of physical disabilities and other health impairments? So, according to United States Department of Education, IDEA 2004, Individuals with Disabilities Education Act 2004. A physical disability is characterized under आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट. एक फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ को करेक्टराइज किया जाता है आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट में, एंड डिफाइन एज, और इसको डिफाइन इस तरह किया जाता है, a severe orthopedic impairment that adversely affect a child's educational performance. कि एक जो सवेयर ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट होती है, ये वो होती है जो बहुत ज़्यादा बच्चे की जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस होती है उसको नुकसान देती है या मुतासर करती है या रुकावट डालती है. द टर्म इंक्लूड impairment caused by a congenital anomaly. कि इसमें जो impairment का वर्ड यूज़ किया गया फिज़िकल के साथ, तो बेसिकली ये एक congenital malformation की जानिब, congenital anomaly की जानिब इशारा करती है. congenital anomaly कहते हैं irregularity को, कि बचपन बाय बर्थ ही बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है.
और ये तो आप जानते होंगे कि इम्पेयरमेंट इज़ परमानेंट। और ये इम्पेयरमेंट कॉज्ड बाय डिजीज़, किसी डिजीज़ की वजह से हो सकती है इम्पेयरमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल poliomyelitis, bone tuberculosis, and impairments from other causes। और ये अदर causes क्या हो सकती हैं? cerebral palsy CP, amputations, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, and fractures or burns that cause contractures। ये तो हो गया हमारे पास फिजिकल इम्पेयरमेंट्स के हवाले से जो आइडिया ने कहा। अब आइडिया ने अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट के बारे में क्या कहा? अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट इज़ डिफाइंड बाय आइडिया as having limited strength, vitality or alertness। having limited strength, कम strength का होना, कम alertness का होना, और vitality कम energy का होना, including a heightened alertness to environmental stimuli। स्टिमुली उस चीज़ को कहते हैं ना जो हमारे अंदर किसी तरह की कोई तहरीक पैदा करे। एनवायरमेंटल स्टिमुली होने के बावजूद हाइटेंड अलर्टनेस हो, कम से कम अलर्टनेस हो, दैट रिजल्ट्स इन लिमिटेड अलर्टनेस, और वो उसका नतीजा होता है कम अलर्टनेस की वजह से। विद रिस्पेक्ट टू द एजुकेशनल एनवायरनमेंट, ख़ासकर एजुकेशनल एनवायरनमेंट में, मतलब एनवायरमेंटल स्टिमुली क्या है? एजुकेशन जो बच्चे को प्रोवाइड की जा रही है। और बच्चे की जो लिमिटेड अलर्टनेस है वो ये है कि बच्चा अपनी किसी प्रॉब्लम की वजह से उस एनवायरमेंटल स्टिमुली, उस एजुकेशनल स्टिमुलस की वजह से उसको रिस्पॉन्स ही नहीं दे पा रहा। दैट नंबर 1, that is due to chronic or acute health problems such as asthma, attention deficit disorders ADD, or attention deficit hyperactive disorder ADHD, diabetes, epilepsy, heart conditions, hemophilia, lead poisoning, leukemia, nephritis, rheumatic fever, sickle cell anemia, and Tourette syndrome। ये वो कंडीशन है जिनकी वजह से बच्चा अपने एनवायरमेंटल स्टिमुली में प्रॉपर रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, अलर्ट ही नहीं है। या नंबर 2, एडवर्सली अफेक्ट चाइल्ड एजुकेशनल परफॉर्मेंस। तो ये एनवायरमेंटल स्टिमुली में इन प्रॉब्लम की वजह से बच्चे की जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस है वो शदीद मुतासर होती है, ये अफेक्ट करती है कंडीशंस। अब अगला पॉइंट है हमारे पास What are the major characteristics of these students with disabilities? अब ये जो हमने फिज़िकल इम्पेयरमेंट्स या अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट्स के जो डिसेबिलिटीज़ को जो हमने फाइंड आउट किया कि जी इनकी वजह से बच्चे की जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस है वो मुतासर होती है। अब हमें इसके करेक्टरिस्टिक्स देखने चाहिए कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्योंकि ये वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो एज अ प्रोफेशनल स्पेशल एजुकेटर हमारे लिए इन द फ्यूचर लॉन्ग रन जो इनके जो बेनिफिट्स हैं या चीज़ें हैं जो हम उनको अंडरस्टैंड कर सकेंगे और एज अ प्रोफेशनल बहुत बेहतर तरीके से हम लोग परफॉर्म करने सकेंगे जब हम इनके करेक्टरिस्टिक्स वेरी क्लियर होंगे। The characteristics of a physical disability will vary significantly depending of the type and severity of physical disability as well as the body parts affected। अब जो इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं
किसी भी फिज़िकल डिसेबिलिटी के वो चेंज होते हैं, डिपेंड करते हैं टाइप और उसका जो सेवेरिटी लेवल होता है ना फिज़िकल डिसेबिलिटी का, या जो मुतलका जो बॉडी पार्ट जो इफ़ेक्ट होता है इसकी वजह से मुतासिर होता है, उसकी वजह से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी वेरी करते हैं। अच्छा, अब फिज़िकल डिसेबिलिटीज़, ये जो कॉमन फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ हैं वो ज़रा हम इनको देख लेते कि कौन कौन सी फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़ हैं। पहले नंबर 1 पे सेरेब्रल पॉल्जी, नंबर 2 मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, नंबर 3 स्पाइना बिफिडा, नंबर 4 ऑर्थोपेडिक एंड मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस। तो ये 4 है हमारे पास बेसिक फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़। तो फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़ का शिकार जो भी बच्चे होंगे तो हमें इन चारों को देखने से पता चल जाएगा कि ये फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़ में। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें इनके उन स्टूडेंट्स के जो अदर हेल्थ एम्पेयरमेंट्स का शिकार है, ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, तो आप इसमें देखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स विद अदर हेल्थ एम्पेयरमेंट्स आल्सो वेरी डिपेंडिंग ऑन द हेल्थ एम्पेयरमेंट। यानी कि इसमें भी जो स्टूडेंट्स विद हेल्थ एम्पेयरमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उनकी कंडीशन पे वेरी करते हैं। स्टूडेंट्स में भी वीक, स्टूडेंट्स कमज़ोर हो सकते हैं, टायर्ड थके हुए हो सकते हैं, और इन पेन, उनको पेन भी हो सकता है, जिससे हमें उनके फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी जेस्चर देखने से पता चल जाता है। स्टूडेंट विद अदर हेल्थ एम्पेयरमेंट टेंड टू हैव मोर एब्सेंस ड्यू टू देयर इलनेस। अपनी इलनेस की वजह से वो ज़्यादा एब्सेंस शो करते हैं। कॉमन हेल्थ कंडीशन दैट में क्लासीफाई एज स्टूडेंट्स विद अदर हेल्थ एम्पेयरमेंट्स, ये कौन सी जो कंडीशंस हैं जो स्टूडेंट्स विद अदर हेल्थ एम्पेयरमेंट को क्लासीफाई करते हैं वो ज़रा देखते हैं हम लोग। इसमें अस्थमा है, नंबर 2 HIV और एड्स है। HIV आपको पता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये इसके एब्रीवेशंस हैं, और एड्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जहन में रखिएगा HIV और एड्स के जो एब्रीवेशंस हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं MCQ की सूरत में। नंबर 3 सिकल सेल डिजीज़, नंबर 4 एपिलेप्सी, नंबर 5 कैंसर, नंबर 6 टाइप 1 जुवेनाइल डायबिटीज़, नंबर 6 सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसको हम लोग रोजनबर्ग सेंस में लेते हैं, वेस्लिंग, सिस्टिक फाइब्रोसिस देखेंगे जी नंबर लास्ट पे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, हाउ ऑफन डू फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ एंड अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट्स अकर, कि कितना ज़्यादा फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ या अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट्स की प्रेवलेंस होती है। ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। स्कूल एज चिल्ड्रन अप्रॉक्सीमेटली 0 to 14, पैदा होने से लेकर 14 साल की उम्र का जो बच्चा होता है
बल्कि ये है 0.14%। जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं जिनकी तादाद 0.14 मतलब जितने भी ओवरऑल जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उन बच्चों में से अगर 0.14% बच्चे लिए जाएं, उनको क्लासिफाई किया जाता है विद फिज़िकल डिसेबिलिटीज़, और 0.59% को क्लासिफाइड किया जाता है ऐसे बच्चे जो स्टूडेंट्स विद अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये रोजनबर्ग, वेस्लिंग एंड नेक्लेक्सी 2011 के रेफरेंस के साथ ये बात मैंने कोट की है। नेक्स्ट हमारे पास एक स्लाइड है। What are some important areas of assessment and planning for these students? Question mark. Some students with physical disabilities have difficulty communicating. कुछ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ को कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एजुकेटर्स, एजुकेटर्स के लिए क्या अहम है, टू डिटरमाइन द intellectual abilities of these students so the teacher could provide students with instructions that academically challenging. टीचर या एजुकेटर या स्पेशल एजुकेटर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो स्टूडेंट्स के जो इंटेलेक्चुअल जो एफिशिएंसीज़ हैं, जो इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटीज़ हैं, जो उनकी जो जहनी जो सलाहियत हैं, उनको डिटरमाइन करें, बहुत अच्छी तरह एग्ज़ामिन करें, और फिर इन स्टूडेंट्स को वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करें जो उनके लिए एकेडमिकली चैलेंजिंग साबित हो रही हैं। The following questions should be addressed when educating students with physical or other health impairments. इन questions को ज़रूर एड्रेस किया जाना चाहिए जब आप students with physical disabilities और students with other health impairments को पढ़ा रहे हों। Number 1, where should the student receive services and which accommodation should be used? ये स्टूडेंट्स को जो सर्विसेज हैं कहाँ पे रिसीव करनी चाहिए और कौन सी अकोमोडेशन इसको इस्तेमाल करनी चाहिए। नंबर 2, व्हाट करिकुलम इज़ इम्पॉर्टेंट, कौन सा करिकुलम इम्पॉर्टेंट है। व्हाट आर द स्टूडेंट इंडिविजुअल्स गोल्स। करिकुलम तो आपको मालूम है कि एक्टिविटीज़ इन द स्कूल को कहा जाता है ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द स्कूल, और इंडिविजुअल गोल से मुराद ये है कि वो जो बच्चा, गोल हमेशा लॉन्ग टर्म होते हैं और गोल को अचीव करने के लिए हम हमेशा छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। तो बच्चा उसके जो इंडिविजुअल गोल्स हैं वो क्या होंगे। नंबर 3, what method of instruction will be provided to student with effective learning opportunities, कौन से मेथड यूज़ किए जाएंगे जिससे बच्चे को इफ़ेक्टिव लर्निंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। नंबर 4, should adaptive devices be used? Question, if so, which adaptive devices will be used? क्या adaptive devices यूज़ की जानी चाहिए? अगर ऐसा है तो कौन सी adaptive devices यूज़ होनी चाहिए। नंबर 5,
how can school staff ensure they are addressing the physical and health care needs of the students? स्कूल स्टाफ कैसे एड्रेस कर सकता है और कैसे इंश्योर कर सकता है कि बच्चे की जो फिज़िकल और हेल्थ केयर नीड्स जो है वो पूरी की जा रही है? नंबर 6, how will school staff communicate effectively with the parents? कैसे स्कूल स्टाफ इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करता है पेरेंट्स के साथ, द फैमिलीज़ उनकी फैमिलीज़ के साथ, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ, ऑफ द स्टूडेंट उन स्टूडेंट के साथ, उनके स्टूडेंट के साथ रिलेटेड जो उनकी फैमिलीज या पेरेंट्स हैं, हाउ स्कूल स्टाफ कैन कम्युनिकेट, कैसे कम्युनिकेट कर सकता है? सो नेक्स्ट ये क्वेश्चन वो थे जो एक स्पेशल एजुकेटर को हमेशा एड्रेस करने की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद फिज़िकल एंड अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट्स। एक अच्छा स्पेशल एजुकेटर बनने के लिए आपको इन 6 क्वेश्चंस को लाजमी एड्रेस करना पड़ेगा और करना चाहिए। सो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है what special consideration exists for these students with regard to instruction and related services? इंस्ट्रक्शंस आप समझ गए होंगे, टीचिंग से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है। सो कौन सी स्पेशल कंसिडरेशन है जो इन स्टूडेंट्स के लिए एग्जिस्ट करती हैं और ये रिलेटेड है इनकी इंस्ट्रक्शन और बाकी सर्विसेज से? और यकीनन ये स्पेशल एजुकेशन इन चीज़ों को फॉलो कर सकता है कि इंस्ट्रक्शंस भी प्रोवाइड करे और सर्विसेज भी प्रोवाइड करे। अर्ली इंटरवेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ स्टूडेंट्स विद फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ एंड अदर स्टूडेंट्स विद अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट्स। अर्ली इंटरवेंशन आपको यकीनन आइडिया होगा इस चीज़ का कि आइडिया 2004 में जो पॉइंट नंबर 3 है वो अर्ली इंटरवेंशन है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर एक चीज़ पूछी जाती है कि आइडिया 2004 के मुताबिक अर्ली इंटरवेंशन की एज क्या है? वो है 0 to 3 years। और अर्ली इंटरवेंशन एट रिस्क बच्चों के लिए प्रोवाइड की जाती है मोस्टली। तो इस पर हमारे पास देखें, ये 0 to 3 years का जो अरसा है ये बच्चा हमेशा अपने वालिदैन के पास गुजारता है घर पे। तो इसमें अर्ली इंटरवेंशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है और ये बहुत ज़्यादा अहम है दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो फिज़िकली इम्पेयर्ड हैं या अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट्स के साथ हैं। अर्ली इंटरवेंशन कैन प्रोवाइड स्टूडेंट्स with physical conditions with therapeutic approach। अब ये थेराप्यूटिक अप्रोच है जो कि अर्ली इंटरवेंशन में ही स्टेज में प्रोवाइड की जाती है बच्चे को, which can help to improve the student's strength, जो कि बच्चे की बहुत ज़्यादा मदद करती है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव करने में। पॉस्चर, उसके पॉस्चर्स को, पॉस्चर चूँकि बॉडी जेस्चर से रिलेटेड है, फिज़िकल पोजीशनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन है, तो पॉस्चर्स को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प करती है फिज़िकल थेरेप्यूटिक अप्रोचेस। एंड रेंज ऑफ मूवमेंट, और उसकी जो मूवमेंट की जो रेंज है उसको बहुत हद तक इम्प्रूव करते हैं थेरेप्यूटिक अप्रोचेस। अर्ली इंटरवेंशन आल्सो हेल्प पेरेंट्स प्रोवाइड इंटरवेंशन एट होम। अर्ली इंटरवेंशन में जो वालिदैन के लिए सबसे बड़ी फैसिलिटी कह लें, सहूलत कह लें, सर्विस कह लें, वो अवेलेबल एट होम है, एट डोर स्टेप। एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुलनेस ऑफ अर्ली इंटरवेंशन एज वेल। When students are enrolled in early intervention, school personnel, health care providers, and social worker offer support to parents who may be having a difficult time as a result of their child physical
लिमिटेशंस और इलनेस। बच्चे की जो फ़िज़िकल लिमिटेशंस या उसकी जो इलनेस, बीमारी की वजह से वालिदैन ने जो एक टफ़ टाइम गुजारा होता है, एक मुश्किल टाइम गुजारा होता है, तो अगर ये बच्चा अर्ली इंटरवेंशन में एनरोल हो चुका होता है या हो जाता है, तो इसमें जो स्कूल पर्सनल होते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं और सोशल वर्कर्स जो होते हैं, ये अपनी सर्विसेज या अपनी सपोर्ट ऑफ़र करते हैं, और ये वालिदैन के लिए यकीनन हवा का एक झोंका साबित होती है, ठंडी हवा का झोंका। It is important that teacher determines the individual learning needs of the student। बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट, कि टीचर ही एग्ज़ामिन करेगा बच्चे की जो इंडिविजुअल नीड्स हैं उनको। Some students with physical or health impairments may be academic gifted and some may have other disabilities इंक्लूडिंग लर्निंग डिसेबिलिटी। ये बहुत अहम स्टूडेंट है, बहुत अहम सेंटेंस है, और मैं सेंटेंस को दोबारा दोहराना चाहूँगा, और आप इस पॉइंट को ज़रूर अंडरस्टैंड कीजिएगा, इस सेंटेंस को। सम स्टूडेंट्स विद फिज़िकली और हेल्थ इम्पेयरमेंट्स मे बी एकेडमिकली गिफ्टेड। अभी कुछ बच्चे जो बेशक फ़िज़िकल या हेल्थ इम्पेयरमेंट्स का शिकार है, लेकिन एकेडमिकली गिफ्टेड होते हैं। अच्छा, इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट आईक्यू के बारे में हमने सुना हुआ है। अगर आईक्यू की वो जो डिवीज़न है उसके बारे से बात की जाए, तो गिफ्टेड बच्चों का जो आईक्यू होता है वो 140 एंड अबव होता है। तो ये ज़रूर जहन में रखें कि जिसको हम लोग ज़हीन व फ़तीन बच्चे कहते हैं, गिफ्टेड होने के लिए, ज़हीन व फ़तीन होने के लिए बच्चा डिसेबल हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गिफ्टेड बच्चा आपको जनरल एजुकेशन के स्कूल में भी मिलेगा और स्पेशल एजुकेशन स्कूल में भी मिलेगा। दिस इज़ वेरी क्लियर। तो एकेडमिकली गिफ्टेड से मुराद ये है। और कुछ बच्चे जो फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ या हेल्थ इम्पेयरमेंट का शिकार होते हैं, उनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। अब लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आप समझ सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। 4 है हमारे पास: डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्प्राक्सिया और ये डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, डिसकैल्कुलिया है और डिस्प्राक्सिया है। तो ये 4 हमारे पास है लर्निंग डिसेबिलिटी। कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। All students with disabilities will participate in the जनरल करिकुलम। तमाम स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो जनरल करिकुलम में ही पार्टिसिपेट करेंगे, बट सम विल रिसीव मॉडिफिकेशंस और इंस्ट्रक्शंस इन डेली लिविंग स्किल्स। लेकिन कुछ को मॉडिफिकेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी और यकीनन एक हेल्प की भी ज़रूरत पड़ेगी डेली लिविंग स्किल्स में, बिकॉज ऑफ देयर डिसेबिलिटीज़। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है teaching us students with other health impairments। teaching us students with other health impairments। अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट के स्टूडेंट की टीचिंग हमने कैसे करनी है, इसको ज़रा देख लें। अकॉर्डिंग टू रोजनबर्ग, वेसलिंग एंड मैकलेक्सी 2011, following are the guidelines when teaching us students with other health impairments। स्टूडेंट्स विद अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट्स के टीच करने के लिए उसके हवाले से जो गाइडलाइंस हैं वो मंदरजा ज़ैल हैं। ख़ासकर उस वक्त जब वो बच्चे जनरल क्लासरूम में मौजूद होते हैं।
Number 1, know the warning signals for students with conditions such as respiratory problems, heart conditions, or other chronic health problems, and how to respond to students' needs. As a teacher, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप ये जानें कि जिन बच्चों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, हार्ट कंडीशन का इशू है, या कुछ और हेल्थ प्रॉब्लम से वो लोग सफ़र कर रहे हैं, वो बच्चे सफ़र कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स की इन नीड्स को कैसे एड्रेस करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है टाइमली, आपने ऑब्ज़र्व करते रहना, आपने जानते रहना है. Number 2, follow universal precautions to avoid contact with any communicable disease. यूनिवर्सल जो गाइडलाइंस है ना वो ज़रूर आप फॉलो करें कि जितनी भी कम्युनेबल डिजीज़ से मुराद वायरल डिजीज़ है उनसे बचना है आपने, या इग्नोर करना है, अवॉइड करना है. Number 3, हैव एमरजेंसी प्लान्स. आपके पास एमरजेंसी प्लान्स होना चाहिए. इन केस ऑफ एन इक्विपमेंट फेलियर, अगर कोई इक्विपमेंट फेल हो जाता है, एन एमरजेंसी फ़िज़िकल प्रॉब्लम, या कोई ऐसा फ़िज़िकल प्रॉब्लम जो कि एमरजेंसी में हुआ हो, और प्रॉब्लम अकर ड्यू टू नेचुरल डिज़ास्टर, या नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो, तो आपके पास एमरजेंसी प्लान लाजमी होना चाहिए. Number 4, बी अवेयर ऑफ रूटीन ट्रीटमेंट. रूटीन ट्रीटमेंट के हवाले से आपने अवेयर होना है. एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर केयरिंग दैम, और कौन रिस्पॉन्सिबल है उसको केयर करने के लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए. Number 5, नो द मेडिकेशन द स्टूडेंट टेक. उन मेडिसिन का आपको पता होना चाहिए जो आपके स्टूडेंट लेते हैं. हु इज़ टू एडमिनिस्ट्रेट, कौन इन्हें एडमिनिस्टर करता है, और उसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट भी आपको मेडिसिन का पता होना चाहिए. दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ यू एज अ स्पेशल एजुकेटर. Number 6, नो स्पेशल न्यूट्रिशनल नीड्स such as diet restrictions, special diets, special eating procedure. आपको पता होना चाहिए एज अ स्पेशल एजुकेटर कि बच्चे की जो न्यूट्रिशन नीड है वो क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा क्या नहीं खा सकता, क्या खा सकता है, या उसका खाने का प्रोसीजर क्या है, किसी मखसूस तरीके से खाता है, ये सारी चीज़ें एज अ स्पेशल एजुकेटर यू शुड नो. Number 7, know how much the student is expected to participate in self-managing his physical or health needs. बच्चा कितनी एक्टिवली अपनी जो उसकी जो फिज़िकल या हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें उनको कैसे वो मैनेज कर रहा है. इट इज़ एसेंशियल दैट, ये बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट्स प्रैक्टिस एज मच इंडिपेंडेंस. स्टूडेंट को इंडिपेंडेंटली हर चीज़ की प्रैक्टिस खुद करनी चाहिए. ये भी रोजनबर्ग या जिनका रेफरेंसेस मैं दे रहा हूँ 2011, उन्होंने ये कहा है, एक स्टडी में प्रूव किया है. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है गाइडलाइंस फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स विद फ़िज़िकल. अब हम फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़ के हवाले से गाइडलाइंस हैं कि उनको टीचिंग करने के दौरान कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए. पहले हमने आर्थोपेडिक के हवाले से जो टीचिंग गाइडलाइंस हैं उनको पढ़ा था. अंदर जो झैल गाइडलाइंस हैं, द फॉलोइंग आर द गाइडलाइंस व्हेन टीचिंग अ स्टूडेंट विद फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़ इन द क्लासरूम में स्टूडेंट्स विद फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़ को टीच करने के लिए जो गाइडलाइंस है वो मंदरजा झैल है. Number 1, the school and classroom should be assessed by a physical or occupational therapist to determine its accessibility. स्कूल और क्लासरूम जो है ये लाजमी असेस किया जाना चाहिए
वो एक फ़िज़िकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ही असेस करेगा कि एक्सेसिबिलिटी के हवाले से वो कितना मौजू है, यानी कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट आ जाती है। नंबर 2, स्कूल अरेंजमेंट्स सच एज रैम्प, handrails, widening of sidewalks and doorways, and adjustment of the heights of equipment might be necessary। ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि स्कूल के अरेंजमेंट जिनमें रैम्प है, हेडरेल्स है, जो और रास्ते के साथ छोटे छोटे रास्ते होते हैं रोड के साथ साथ चलने वाले, क्या वो चौड़े हैं? दरवाजे खुले हैं? खुले से मुराद चौड़े भी होने चाहिए। और जो इक्विपमेंट्स की जो हाइट्स है जो बच्चे यूज़ करेंगे वो कितनी है? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ नेसेसरी। नंबर 3, इन द classroom, teacher should make sure that there is ready access to all participant of the room। टीचर को ये इंश्योर करना चाहिए क्लासरूम में कि एक्सेस बिल्कुल रेडी होनी चाहिए हर बच्चे के लिए, हर पार्टिसिपेंट के लिए जो क्लासरूम में मौजूद है, इंक्लूडिंग सेंटर्स एंड मटेरियल्स, चाहे वो क्लासरूम का सेंटर हो या क्लासरूम के अंदर मौजूद मटेरियल हो, हर बच्चे की एक्सेस में हो। नंबर 4, sometime classroom temperature may have to be adjusted to accommodate a students health needs। बच्चे की जो हेल्थ नीड्स है, बच्चे को एकोमोडेट करने के लिए उसकी हेल्थ नीड्स के हवाले से एकोमोडेट करने के लिए कमरे का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। शदीद सर्दी है तो कुछ गर्म होना चाहिए, शदीद गर्मी है तो कुछ ठंडा होना चाहिए। तो ये मेन 4 पॉइंट्स है जो कि स्टूडेंट्स विद फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ के टीचर्स को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अडॉप्ट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, व्हाट आर सम मेजर इश्यूज़ related to teaching and providing services to students with physical disabilities or other health impairments। अब हम उन इश्यूज़ को देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा कंसीडर किए जाने चाहिए इन टीचिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करने के दौरान, जो कि स्टूडेंट्स विद फिज़िकल जो हेल्थ इम्पेयरमेंट्स के बच्चों को दी जाती है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, देयर आर ऑफन एडेड एक्सपेंसेस, कुछ ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं इन एजुकेटिंग स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ को पढ़ाने के हवाले से एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा ऐड किए जाते हैं हमेशा। स्कूल आर ऑफन रिक्वायर टू प्रोवाइड मेडिकल सर्विसेज, स्कूल को अक्सर औकात मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है फॉर स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए। द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज कैन बी सिग्निफिकेंट, यकीनन इन सर्विसेज की जो कॉस्ट है वो भी सिग्निफिकेंट होती है, इम्पॉर्टेंट है। देयर कैन आल्सो बी सेफ्टी रिस्क इन्वॉल्व्ड फॉर दोज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, यकीनन ये एक सेफ्टी रिस्क भी होता है इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने में। स्कूल को एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी या करनी पड़ती है कि कौन सी सर्विसेज जो है स्कूल की जानिब से प्रोवाइड की जानी चाहिए, एंड व्हाट मेडिकल सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड बाय हेल्थ प्रोफेशनल्स। चूँकि हेल्थ प्रोफेशनल्स मोस्टली स्कूल से बाहर काम करते हैं अपने क्लिनिक्स में, ये तो यहाँ पे जो मेडिकल सर्विसेज है वो उन्होंने प्रोवाइड, तो स्कूल को ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कौन सी सर्विसेज स्कूल ने प्रोवाइड करनी है, कौन सी सर्विसेज इन हेल्थ प्रोफेशनल से प्रोवाइड करनी है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो वेरी एक्सपेंसिव टूल, असिस्टिव टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा एक एक्सपेंसिव टूल है
जो कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। Finding money in the school budget to provide for the added services of the students with physical disabilities or other health impairments can be difficult. स्कूल के बजट से वो रकम निकालना जो कि स्टूडेंट विद फिज़िकल डिसेबिलिटीज अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट्स के लिए इन एडेड एक्सपेंसेस, ये जो एक्स्ट्रा अखराजात होते हैं, इनको पूरा किया जाए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये वो इश्यूज़ है, इनको भी एड्रेस किए जाने की ज़रूरत है, लेकिन स्कूल यकीनन इन इश्यूज़ को फेस कर रहा होता है और यकीनन ये सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें एक आइडिया देती है कि हमने इन सारी चीज़ों को साथ लेकर के चलना है, चाहे इश्यूज़ हैं, चाहे हमारे पास जो बच्चे हैं, चाहे फिज़िकल डिसेबिलिटी, अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट। एज अ स्पेशल एजुकेटर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमने प्रॉब्लम में उलझना नहीं है, बल्कि हमने प्रॉब्लम का हल ढूंढना है। एक जो प्रोफेशनल होता है, ट्रू प्रोफेशनल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही यही होती है कि वो एक एनवायरनमेंट के अंदर जो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर अगर मौजूद है तो अपनी तमाम प्रोफेशनल स्किल्स को यूज़ करते हुए ही शुड प्रोवाइड all professional approach to the people around him, whether they are the children, whether they are his colleague. So this is the lecture for today, guys. I hope that you will have the good understanding and learning as well. So the assignment that I'm going to assign you people, आपने learning disabilities के हवाले से काम करना है। ये आपकी एक असाइनमेंट है, इस पर ज़रा देख लीजिएगा, learning disabilities. So see you in next class inshallah. Take care and have a nice day. 05402. Swipe this to